دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 17 پیشکش میر کارواں۔ فائدے اور نقصان کا تو مجھے پتا نہیں، وہ بدستور الجھن زدہ انداز میں بولی، لیکن سچ سچ بتاؤ، کیا واقعی کوئی سرخ جیپ ہمارا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی تھی؟ وہ اس سوال میں حق بجانب تھی۔ فاضلیہ کالونی والی کوٹھی سے روانہ ہوتے وقت میں نے اسے عقبی نشست پر لیٹنے کی ہدایت کی تھی۔ مجھے اپنے تعاقب کا احساس شادمان کالونی میں ہوا تھا تو میں نے اسے نشست سے لڑک کر جیپ کے فرش پر پہنچنے کا حکم دے دیا تھا، جہاں سے تھوڑی دیر قبل وہ اٹھی تھی۔ اس دوران میں اسے ایک لمحے کا موقع بھی نہ مل سکا کہ وہ متعاقب جیپ کی ایک جھلک بھی دیکھ پاتی۔ وہ اب تک میرے بتائے ہوئی ہر بات پر یقین کرتی آ رہی تھی، لہٰذا اسے یہ شک ہو سکتا تھا کہ میں نے اسے بیوقوف بنانے کے لیے تو کہیں سرخ جیپ کا چکر نہیں چلایا تھا۔ یہ سچ ہے زرگل؟ میں نے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ پھر وہ کچھ کیے کرائے بغیر واپس کیوں چلے گئے؟ میں بھی ان کے اس رویے پر حیران ہوں۔ وہ خاموش ہوگی لیکن پھر کھوجتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنا جاری رکھا۔ میں نے اپنی جیپ کو نہر کے پل کے اوپر سے گزارنے کے بعد واپسی کے راستے پر ڈال دیا۔ اب ہمارا رخ مغل پورہ سے گلبرگ کی جانب تھا۔ میں نے نہر کے کنارے سفر جاری رکھتے ہوئے زرگل سے پوچھا، تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، بات یقین اور بے یقینی کی نہیں ہے وجی، پھر کیا بات ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ بولی، مجھے منافقت سے شدید نفرت ہے۔ یہاں منافقت کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ میرے لہجے میں حیرت تھی۔ بتا رہی ہوں، اسے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، اب تک تم نے میرے ساتھ دوستانہ رویے کا مظاہرہ کیا ہے، اس لیے میں تم سے کسی قسم کی منافقت نہیں برت سکتی۔ تمہارے لیے میرے دل اور ذہن میں جو کچھ ہے وہ تم سے کہنا چاہتی ہوں، بالکل صاف صاف۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، میں بھی صاف کوئی کو پسند کرتا ہوں۔ تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو بے دھڑک کہہ ڈالو۔ وجی، اس نے مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا اور دو ٹوک لہجے میں کہا، سچی بات تو یہ ہے کہ تم بہت ہی پراسرار ہو۔ میں تمہارے بیان کو شک کی نظر سے نہیں دیکھ رہی۔ یقیناً کسی سرخ جیپ نے ہمارا تعاقب کیا ہوگا، پھر وہ ہم سے کوئی زبانی یا عملی مکالمہ کیے بغیر واپس چلے گئے۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ تم کہہ رہے ہو تو ایسا ہی ہوا ہوگا اور یہ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہوگا۔ متعاقب جیپ والوں کو تم ہی نے فرار ہونے پر مجبور کیا ہوگا۔ میں نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، تم بھی عجیب بات کرتی ہو زرگل۔ ہاں، بات تو عجیب ہے مگر تمہاری پراسراریت کی دلیل ہے۔ یہ تم مجھے پراسرار ثابت کرنے پر کیوں تلی بیٹھی ہو؟ اس لیے کہ تم جو نظر آتے ہو وہ نہیں ہو۔ زرگل کی اس بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس چونکنے میں تشویش بھی شامل ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کیا زرگل میری اصلیت جان گئی ہے؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری ملاقات کو لگ بھگ 2 گھنٹے گزرے تھے۔ اس مختصر سی مدت میں وہ میری حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یہ جاننے کے لیے وہ مجھے پراسرار کیوں سمجھ رہی ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ زرگل، میرے اندر تمہیں ایسی کون سی پراسرار بات نظر آتی ہے؟ وہ گمبھیر آواز سے بولی، تم نے مجھے اپنا نام وجی بتایا ہے، جبکہ تہخانے کے اندر اس گینڈے نے تمہیں وجدان کہہ کے مخاطب کیا تھا، جس پر تم نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا۔ غالباً اس نے تمہیں کسی منشا اور چودھری دلدار نامی خطرناک افراد سے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی دھمکی تم پر کوئی ہاترہا اثر نہ کر سکی اور ان تینوں کو تہخانے میں بند کر کے تم چلے آئے ہو۔ میں تمہیں وجی سمجھوں یا وجدان؟ اس کے سوال میں بڑی طاقت تھی۔ اس سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ وہ بہت ہی موقع شناس اور بہترین قوت مشاہدہ کی مالک تھی۔ اس کی یادداشت بھی بلا کی تھی۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، زرگل، میں دراصل دوہری زندگی گزار رہا ہوں، کہیں وجی بن کر اور کہیں وجدان کی حیثیت سے۔ تم نے تہخانے میں میرے 3 دشمنوں کو دیکھا، وہ مجھے وجدان کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں راز یا اسرار والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا، یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تم اپنے 3 خطرناک دشمنوں کو ایک ایسے تہخانے میں چھوڑ آئے ہو جس کا روشن دان پائے باغ میں کھلتا ہے۔ کیا وہ لوگ روشن دان کے راستے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ تم شکل سے اتنے بے احتیاط تو نظر نہیں آتے۔ وہ بڑے ہی کانٹے کے سوال پوچھ رہی تھی۔ میں نے اپنی جیپ کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روشن دان سے فرار ہونے کی کوشش کرنا ممکن نہیں۔ اگر وہ کسی طرح اس پر نصب گرل کو اکھاڑ بھی لیں تب بھی 3 ضرب آدھا فٹ خلا میں سے کسی انسان کا گزرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ البتہ اگر وہ دیوار توڑنے کی مہم میں لگ جائیں تو بات دوسری ہے۔ اس کوشش میں بھی ان کی کامیابی کے امکانات اس لیے نظر نہیں آتے کہ اول تہخانے میں ایسی کوئی شے دستیاب نہیں جس کی مدد سے وہ تہخانے کی مضبوط دیوار میں توڑ پھوڑ کا عمل شروع کر سکیں۔ بفرض محال وہ لوگ یہ کام شروع کر بھی دیتے ہیں تو کنکریٹ بڑی اس دیوار کو کاٹتے کاٹتے صبح ہو جائے گی۔
लेकिन मैं उन्हें इतनी मोहलत देने में हरगिज यकीन नहीं रखता। क्या मतलब? मेरी बात खत्म हुई तो उसने जल्दी से पूछा, क्या तुम उस तरफ वापस जाने का इरादा रखते हो? मैंने कहा, फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। थोड़ी देर बाद मैं अपने दोस्त की कोठी में पहुंचने वाला हूँ, जिसके मुताबिक कोठी में हमारी पहली मुलाकात हुई थी। मैंने जरा तवक्कुफ करने के बाद इजाफा करते हुए कहा, मैं पहली फुर्सत में फरीद पाशा को तहहानी का अहवाल सुनाऊंगा। वो खुद ही इन तीनों का कोई माकूल बंदोबस्त कर देगा। और कोई सवाल? और सुरह जीप वालों के बारे में क्या वजाहत दोगे? मैं खुद इनके रवैये नहीं समझ पाया। मैंने साफ कोई का मुजाहरा करते हुए कहा, अपने हम शक्ल नकली वजदान के सिलसिले में जरगुन के सामने लब कुशाई नहीं करना चाहता था। वो पहले ही मुझे कोई पुरस्कार शख्सियत करार देने की मोहम पर नजर आती थी। सुर्ख लैंड क्रूजर 4731 में मैंने जो कुछ सीखा था उसका जिक्र कर बैठता तो जरगुल सवालात कर करके मेरी जान खा देती। इसलिए मैंने गोलमोल जवाब दिया, जब मेरी समझ में कुछ आएगा तो मैं तुम्हें भी बता दूंगा। वैसे तुम हाँ अपने जहन को मत खपाओ। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान बच गई। वो मुझ पर निगाह गाड़े खामोश बैठी रही। मैंने गुलबर्ग रोड को क्रॉस करने के बाद जीप को इकबाल रोड पर डाल दिया। सड़क गुलबर्ग के वस्त से गुजरती थी। इस दौरान में मैं थोड़े थोड़े वक्फे से बैक व्यू मिरर में भी झांकता रहा, लेकिन सुरह जीप तो क्या, किसी और भी रंग की कोई गाड़ी मुझे ताक़ुब में दिखाई न दी। फरीद पाशा की जानिब से पहले मैंने थोड़ी और एहतियात बरती और गुलबर्ग मार्केट और मुरातब अली रोड से घूमते फिरते एक लंबा चक्कर काट कर निसान पेट्रोल को गुलबर्ग 3 की जानिब मोड़ दिया था। अब मैं इस जीप को फरीद पाशा की कोठी के सामने जाकर रोकना था, बल्कि इस कोठी के अंदर जाकर। जरगुल, तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूं? मैंने अपनी साथी मुसाफिर से पूछा। मेरी मंजिल तो बहुत ही करीब है, वो कुछ सोचते हुए बोली। तुमने अब तक मेरी जितनी मदद की है, मैं इसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। जाते जाते एक और एहसान भी कर जाओ। कैसा एहसान जरगुल? उसने कहा, रात का बाकी हिस्सा अगर मैं तुम्हारी मंजिल में गुजार लूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? मैं अलील सुबह रवाना हो जाऊंगी। मैं एतराज का हक नहीं रखता, मैंने वजाहत करते हुए कहा। मेरी मंजिल दरअसल मेरे दोस्त की कोठी है, यह हक उसे हासिल है। इस सिलसिले में फरीद पाशा की इजाजत जरूरी है। अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो वो तुम्हारे साथ जाने वाले के लिए भी इस कोठी में जरूर गुंजाइश निकाल लेगा। वो मानी है अंदाज में बोली, 2 घंटे पहले तुम अपने दोस्त की कोठी में मेरी भरपूर मदद कर चुके हो और उसकी इजाजत के बगैर। थोड़े तवक्कुफ के बाद उसने इजाफा करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि फरीद पाशा एतराज नहीं करेगा। वो बड़े मंतकी अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी बात से लाजवाब हो गया। मैंने कहा, चलो ठीक है, इस तरह तुम्हें मुझे अपनी कहानी सुनाने का भी मौका मिल जाएगा और मुझे भी तुम्हें अपनी कहानी सुनाने का मौका मिल जाएगा। तुम भी कुछ कम पुरस्कार किरदार नहीं हो, मगर तुम ज्यादा गहरे हो, वो तेकन से बोली। अच्छा, मैंने हैरत का इजहार करते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो मुझे एक रिवाल्वर नजर आ रहा है। तो जरगुल ने अचानक अपने हाथ में मौजूद रिवाल्वर को देखा और फिर हैरानी से मुझे पूछा, ये रिवाल्वर हिफाजत के ख्याल से तुमने मुझे दिया था, क्या इसे मेरे हाथ में नहीं होना चाहिए? कम अज कम इस वक्त नहीं। मैंने छेड़छाड़ जारी रखी। उसे ताजुबेज लहजे में पूछा, इस वक्त क्यों नहीं? क्योंकि इस वक्त तुम मेरी गहराई नाप रही हो। मैंने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मैं तवक्का कर रहा था कि तुम्हारे हाथ में फैदम होगा। वो अब भी कुछ न समझी। मुझे यकीन हो गया कि वो इस शय से वाकिफ नहीं थी। मैंने उसकी आंखों में उलझन के साए लहराते देखे। बिलाहिर वो पूछ बैठी, ये फैदम क्या होता है? गहराई नापने का पैमाना। मैंने गहरी संजीदगी से बताया, जिसकी लंबाई 6 फुट होती है। वो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे निशान पेट्रोल में जुगनू से जगमगा उठे हों। उसकी हंसी बड़ी ही रोशन और मुतरन्नम थी। अब वो पहले से कहीं मुख्तलिफ जरगुल नजर आ रही थी। वो जरगुल जो जिंदगी बचाने के लिए परेशान न हो, बल्कि बची हुई जिंदगी को गुजार कर खुश हो। उसकी बदलती हुई कैफियत देखकर इस बात पर मेरा यकीन मजीद पुख्ता हो गया कि इंसान की राहत और कल्फत हालात और माहौल की रहीने मिन्नत होती हैं। वो जिस किस्म के हालात से गुजर रहा होता है, उसकी सोच, मिजाज और रवैये पर उसी नौयत के असरात मुरतब होते चले जाते हैं। जरगुल की हंसी ने मुस्कुराहट का रूप धार लिया और वो बड़ी ही जिंदा दिली से बोली, तुम सिर्फ गहरे ही नहीं हो बल्कि शरीर भी हो। तुम्हारी शरारत ने मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया। मुझसे शरारत से ज्यादा हमाकत भरी हुई है। मैं भी उस वक्त शोही पर उतर आया। हमाकत? जरगुल के लहजे में हैरत धर आई। मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। यह हमाकत नहीं तो और क्या है?
जो मैं तुम्हारे हाथ में पैमाना ढूंढ रहा हूँ? मैंने बेधड़क कह दिया। पैमाने तो तुम्हारी आंखों में फिट हैं। उसको चुप सी लग गई, नजर झुकाकर अपने हाथों को गोरने लगी। मैंने कहा, बेचारा 6 फुट फैदम उसके सामने क्या हैसियत रखता है? तुम्हारे पैमानों की रेंज तो पता नहीं। बेसाहता मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी जुबान को पकड़ लिया हो। शायद मेरे अंदर कोई बैठा हुआ था जिसने हाथ बढ़ाकर मेरी बोलती बंद कर दी थी। उसके साथ ही मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं कोई जुर्म करने जा रहा हूँ। मुझे अपने अमल पर पेशेमानी का एहसास हुआ। किसी के हुस्न की तारीफ करना बुरी बात नहीं, लेकिन मैं अपने अंदरून से मजबूर था। जब से साहिल मुझसे जुदा हुई थी, गोया खुशियां मुझसे रूठ गई थी। शायद उसी सबब से मुझे अपने फेल पर नदामत महसूस हो रही थी। मैंने अपने अंदर साहिल को उस गहराई में सजाया था कि उसका एहसास मेरे वजूद का हिस्सा बनकर रह गया था। मेरी हर सांस से उसकी याद से महकती थी। उसके तस्वुर ने मेरी जात को अपने हिसार में ले रखा था। मेरी अपनी जिंदगी तो जैसे खत्म हो गई थी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जिंदा था। मेरे नामुकम्मल जुमले ने ज़रगुल की खामोशी को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। तुम कुछ कहते कहते क्यों रुक गए? कुछ नहीं, मैंने भराई हुई आवाज में कहा। थोड़ी देर पहले तो तुमने बहुत कुछ कहा, फिर अचानक सब कैसे खत्म हो गया? जो इंसान के इख्तियार में नहीं हो उस पर अचानक हमला हो जाता है। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बालातर हैं। तुम अपनी समझ को घायल ना करो। फिर किसको करूं? मुझे नहीं मालूम, मैंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा और विंड स्क्रीन के पार से सड़क को घूरने लगा। उसके बाद ज़रगुल ने कोई सवाल नहीं किया और ये हम दोनों के हक में बेहतर साबित हुआ। उसे खामोशी इख्तियार करके समझदारी का सबूत दिया था, वरना साहिल के तस्वुर से मैं जिस ज़हनी कैफियत में था उसमें हलल पड़ने से मैं कोई उल्टा सीधा जवाब भी दे सकता था। महबूब की याद का भी एक अजीब सा नशा होता है। ये हल्की हल्की आंच देती है। इस कैफ आ गई कैफियत को वही लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने जिंदगी में मोहब्बत की हो, किसी को टूट कर चाहा हो। चाहत के अपने आदाब हैं। ये आग का एक दरिया है जिसमें डूब के पार उतरना है। मन में अगर सच्ची लगन की शमा रोशन ना हो तो ये दरिया तन पर आंवले डाल देता है। फरीद पाशा के बंगले पर एक और हैरत मेरी मुंतजिर थी। फरीद की जुबानी मुझे ये तो मालूम हो चुका था कि उमरदीन नामी नए सिक्योरिटी गार्ड ने ड्यूटी संभाल ली थी। हम दोनों एक दूसरे की सूरत आशना नहीं थे। चनाचा गेट पर जब हमारा सामना हुआ तो तारुफ के बावजूद भी उसने मुझे बंगले में दाखिल होने की इजाजत न दी। उसके रवैये ने मुझे उलझा दिया। मैंने सख्त लहजे में कहा, मैं पाशा का बहुत ही करीबी दोस्त हूँ, क्या उन्होंने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया? वो शख्स नजर से मेरे चेहरे को देखते हुए बोला, सब कुछ बताया था जी, लेकिन वो जुमला अधूरा छोड़कर ज़रगुल की तरफ देखने लगा। ये मेरी दोस्त है। मैंने गार्ड की उलझन के जवाब में कहा, क्या तुम इसी की वजह से परेशान हो? वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं आपको देखकर उलझ गया हूँ क्योंकि आप थोड़ी देर पहले भी यहाँ आए थे। वो अपनी बात को नामुकम्मल छोड़कर जल्दी से बोला, ठहरे, मैं अल्लादिता को बुलाता हूँ। ये कहते ही वो कैबिन से निकलकर कोठी के अंदर गायब हो गया। मैं उस वक्त अजीबो गरीब सूरत हाल से दो चार था। गार्ड का ये कहना कि मैं थोड़ी देर पहले भी वहां आया था नाकाबिले यकीन और समझ में ना आने वाली बात थी। ज़रगुल भी सवालिया नजर से मुझे देख रही थी। तामल करते हुए बोली, ये क्या माजरा है वजी? तुम तो लगभग 2.5 घंटे से मेरे साथ हो। मैंने कहा, माजरा तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अल्लादिता को आ जाने दो, फिर ही कुछ पता चलेगा। ये अल्लादिता कौन है? ज़रगुल ने पूछा। फरीद पाशा का मुलाजिम है, बावर्ची के फराइज अंजाम देता है। कमाल है, गार्ड एक खानसामा को बुलाने गया है। क्या तुम्हारा दोस्त फरीद पाशा कोठी में मौजूद नहीं? उसे तो कोठी में ही मौजूद होना चाहिए, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। फोन पर मैं उससे बात कर चुका हूँ कि अगर उसे कहीं जाना होता तो वो मुझे जरूर बता कर जाता। हमारी बातचीत के दौरान गार्ड अल्लादिता को भी बुला लाया। अल्लादिता उसके साथ ही गेट पर नमूदार हुआ। मुझ पर नजर पड़ते ही अल्लादिता चौंका, फिर निशान की जानिब इशारा करते हुए हैरत ज़दा लहजे में बोला, जनाब ये गाड़ी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? और ये आपके साथ कौन है? बात खत्म करते ही उसने ज़रगुल की तरफ इशारा किया। ये सब क्या हो रहा है अल्लादिता? मैंने डांटने वाले अंदाज में कहा, कोठी का गेट खोलने की बजाय तुम लोग मेरा इंटरव्यू क्यों कर रहे हो? पाशा कहाँ है? और जीप खराब होने का क्या किस्सा है? तुमने इसके ठीक होने की बात क्यों की? आपने बहुत ज्यादा सवालात कर डाले हैं। अल्लादिता टटोलती नजर से मुझे देखने लगा। क्या आप थोड़ी देर पहले यहाँ नहीं आए थे? क्या बकवास है? मैंने तकरीबन चीख कर कहा, पाशा को फौरन यहाँ बुलाओ। वो मेरे जारहाना अंदाज से सहम गया। फिर मेरे पूछने पर उसने जो बताया, या इलाही ये क्या माजरा है वाली बात थी। इसके शुरू होते ही मेरा ध्यान आपो आप एक नाकाबिले हल मसले की तरफ चला गया। अल्लादिता के बयान के मुताबिक मैं एक सुरह लैंड क्रूजर में थोड़ी देर पहले इस कोठी पर आया था। मैंने उन्हें बताया कि निसान पेट्रोल अचानक खराब हो गई थी
और मैं उसे एक गैराज में छोड़ आया हूँ। फिर मैंने कोठी में 15-20 मिनट गुजारे और डार्लिंग को लेकर फिर कहीं निकल गया। डार्लिंग की बात ने मुझे तड़पा कर रख दिया। ये तो मैं समझ गया था कि सूरज जीप में आने वाला वही बहरूपिया था। वो शादमान कॉलोनी से मेरा ताकुब करते हुए नहर के किनारे पहुंचा था और मुझसे कलाम किए बगैर रफू चक्कर हो गया था। यकीनन उसके बाद उसने इधर ही का रुख किया था। ये कमबख्त नकली वजदान बहुत से खतरनाक साबित हो रहा था। डार्लिंग को अगर वो अपने साथ ले गया था तो इसका एक ही मतलब था कि वो शातिर बिल्ली होने के बावजूद उससे धोखा खा गई। ये तो बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल थी। डार्लिंग का धोखे में आ जाना कोई मामूली बात नहीं थी। वो किस तरफ गया है और कब वापस आएगा? मैंने इस्तरारी लहजे में पूछा, हालांकि मुझे यकीन था कि वो वापसी के इरादे से नहीं गया था। अल्लाह दीता गंभीर आवाज में बोला, जनाब आखिर मामला क्या है? आप दोनों में से असली कौन है? ये तो मैंने महसूस कर लिया है कि कोई गड़बड़ हो चुकी है। अल्लाह दीता एक मामला फहम और दूर अंदेश शख्स साबित हो रहा था। मैंने नहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, वो एक बहरूपिया है, बहुत ही खतरनाक इंसान। मैं असली वजदान हूँ। तुम जल्दी से गेट खुलवाओ और पाशा को बताओ मैं वापस आ गया हूँ। अल्लाह दीता ने मौका महल देखते हुए गार्ड को इशारा किया कि वो हमारे लिए कोठी का गेट खोल दे। मैं जीप को अंदर ले गया। फिर हम दोनों गाड़ी से नीचे उतर आए। अल्लाह दीता हमारे नजदीक ही खड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने एक और इंकशाफ किया। साहब, पाशा साहब तो इस वक्त कोठी में मौजूद नहीं है। अब वो कहाँ चले गए हैं भाई? बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया। अल्लाह दीता ने बताया उन्हें अचानक सैयदपुर जाना पड़ गया है। बड़े पाशा साहब को दिल का दौरा पड़ा है। फरीद साहब अपनी बेगम के साथ उधर ही गए हैं। बड़े पाशा से उसकी मुराद फरीद का बाप कमाल पाशा थी। ये खबर बड़ी ही होलनाक और सनसनीखेज थी। मैंने उसके साथ कदम बढ़ाते हुए पूछा, वो लोग यहाँ से कितने बजे रवाना हुए हैं? 7 बजे, अल्लाह दीता ने बताया। इस वक्त रात के 9 बजे थे। इसका मतलब था पाशा को गए 2 घंटे गुजर चुके थे। ये लगभग वही वक्त था जब मैं गैरना नमा कादर बख्श का इंटरव्यू कर रहा था। हालात ने अचानक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली थी। मैंने अल्लाह दीता से पूछा, अच्छी तरह सोच कर बताओ, वो शातिर बहरूपिया कितनी देर पहले यहाँ से गया है और उसने अपनी वापसी के बारे में क्या बताया है? मेरे ख्याल में उसे गए हुए 20 मिनट हुए होंगे, उसने बताया। उसने जाते हुए यही कहा था कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। वो अपने साथ मेरी चहीती बिल्ली को भी ले गया। मैंने तुर्श लहजे में कहा, और तुम लोगों ने इसे रोका तक नहीं? ये कैसी गैर जिम्मेदारी है? क्या मैं इसे हियानत समझूं? वो अफसोसनाक अंदाज में बोला, हम क्या करते जनाब, हम तो यही समझे थे कि आप हैं, हम आपको किस तरह मना कर सकते हैं? क्या आप डार्लिंग को अपने साथ ना लेके जाएं? वो बेचारा भी ठीक कह रहा था। मैंने पूछा, चलो गाड़ी के हवाले से तो उसने ये जवाब पेश कर दिया कि वो खराब हो गई है। तुम लोगों ने उसके लिबास पर भी ध्यान नहीं दिया। उसने सफेद पेंट कोट पहन रखा था और मेरा लिबास तुम देख ही रहे हो। हम बातें करते हुए कोठी के अंदर ड्राइंग रूम में आ बैठे तो अल्लाह दीता ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया, साहब सच्ची बात तो ये है कि हम उसे ज़हनी तौर पर चूंकि वजदान ही समझ रहे थे, इसलिए उसके लिबास पर तवज्जो देने की जरूरत महसूस नहीं की। अब आपने याद दिलाया तो मुझे याद आ रहा है, उस चक्करबाज ने वाकई सफेद कोट पहन रखा था, हत्ता कि उसके पाँव में जूते भी सफेद ही थे। ओ मेरे खुदाया, बहुत गजब हो गया। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वाकई आप तो इसी लिबास में कोठी से रवाना हुए थे, आप ही असली वजदान हैं। फिर उसका अंदाज मुल्तजियाना हो गया। साहब मैं आपसे माफी चाहता हूँ, उसे बकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझसे एक संगीन खता हो गई है। अब अगर वो बहरूपिया मुझे नजर आ गया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं, मैंने कदरे नरम लहजा इख्तियार करते हुए कहा, गलती इंसान ही से होती है और इस गलती में तुम बहुत ज्यादा कसूरवार भी नहीं हो। जो मामलात हालात की सितम जरीफे ने बिगाड़ दिए हैं उनसे मैं निपट लूंगा, तुम अपने हाथों को कंट्रोल में रखो। आखिरी जुमला अदा करते हुए मैंने उसके जुड़े हुए हाथों की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो शर्मिंदा सूरत बनाकर बोला, अगर पाशा साहब मेरी समाकत का उन्हें पता चल गया तो वो बहुत ही नाराज होंगे। मैंने कहा, ये वाकया मैं पाशा से नहीं छुपा सकता और ऐन मुमकिन है वो तुमसे सख्त खौफ भी हो। बहरहाल गए हुए वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता। वो नदामत अमेज अंदाज में गर्दन को छटकने लगा। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत उसे पूछा, क्या तुमने नकली वजदान को पाशा की सैयदपुर रवानगी के बारे में तो नहीं बताया था? हाँ बताया तो था जनाब, वो असबात में सर हिलाते हुए बोला। इस पर उसने पूछा कि वो कब वापस आएंगे। जाहिर है मेरे लिए वो वजदान था, इसलिए मैंने उसे एक एक बार ठीक ठीक बता दी। पाशा साहब सैयदपुर किस वजह से गए हैं और ये कि कल से पहले उनकी वापसी मुमकिन नहीं। मैं पाशा साहब के अजीज दोस्त वजदान से क्यों कर झूठ बोलता। अल्लाह दीता अपनी जगह दुरुस्त कह रहा था, लेकिन उसकी फराहम करदा इतलात मेरे लिए क्यामत दर क्यामत थी। वो चालबाज बहरूपिया मेरी डार्लिंग के अगवा के साथ साथ इस कोठी से ये मालूमात भी हासिल करके ले गया था कि
साहिब हाना आज की रात कोठी पर नहीं, वजदान और 2 मुलाजिम उस रात कोठी में होंगे। पाशा ने मुझे बताया कि वो अपनी हिफाजत का कोई ठोस बंदोबस्त कर लेगा, लेकिन कोठी के अंदरूनी वक्त मुझे एक ऐसे ही आसार दिखाई दे रहे थे कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हानसामा, अल्लाह दीता और सिक्योरिटी गार्ड उमरदीन के अलावा कोठी में या तो मैं था या फिर जरगुल। इस बात में किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि मेरा हूबहू बहरूप बनने वाला वो नकली वजदान किसी तौर भी मेरा दोस्त नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझसे मुकालमा किए बगैर दुम दबाकर मौके से फरार न हो जाता। वो यकीनन मेरे दुश्मनों का भेजा हुआ था, जो मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर डार्लिंग को बड़ी सफाई से कोठी से निकाल कर ले गया था। ये मेरे लिए खुला चैलेंज था। गोया उसने शेर के जबड़ों में हाथ डालने की कोशिश की थी, एक कामयाब कोशिश, बादअज़ां ही सही, मगर मुझे उस जीदार को अपने दांतों तले अब पीसना था, जो मेरी डार्लिंग को मुझसे छीन कर ले गया था। उस वक्त मेरे लिए तशवीश की बात यह थी कि मेरे दुश्मन इस बात से आगाह हो गए थे कि उस रात में कोठी में बासानी शिकार किया जा सकता हूँ। किसी बड़ी बैरूनी हमले की तवक्का की जा सकती थी। मैं बेख्तियार सनसनीखेज नजर से अल्लाह दिता को देखने लगा। उसने एक मरतबा फिर नदामत से निगाह झुका ली। मैंने उसे मुहातब करते हुए पूछा, पाशा साहब ने मेरे लिए क्या पैगाम छोड़ा है? मैं नकली वजदान की शर अंगेज हरकत से इस कदर कबीदा हादर हुआ था कि पाशा के बाप का मामला नादानिस्ता तौर पर पसे पुश चला गया। पाशा को मैं दिल से दोस्त तस्लीम कर चुका था, इसलिए बाप को हार्ट अटैक हुआ था। यकीनी तौर पर यह मेरे लिए भी किसी सदमे से कम नहीं था। दोस्त की मुसीबत को नजरअंदाज करना आला दर्जे की कमजरफी कहलाती है। अल्लाह दीता ने मुझे बताया कि पाशा साहब को जैसे ही फोन पर पता चला कि बड़े पाशा साहब को दिल का दौरा पड़ा है, तो उन्होंने सबसे पहले आप ही से राब्ता करने की कोशिश की थी। उन्होंने आपको फाजलिया कॉलोनी वाली कोठी पर फोन किया था, लेकिन आपने फोन अटेंड नहीं किया। उसके बाद उन्होंने अपने एक दोस्त डॉक्टर रियाज से बात की। रियाज साहब उनके खानदानी डॉक्टर हैं और बड़े पाशा साहब के मामलात को अच्छी तरह समझते हैं। वो पाशा साहब के साथ ही सैयदपुर गए हैं। वो एक लम्हे को सांस लेने के हाथ रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, आपके लिए उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि जब आप वापस आ जाएं तो फिर तमाम वक्त कोठी के अंदर ही मौजूद रहें। वो सैयदपुर पहुंचने के बाद किसी भी वक्त आपको फोन करेंगे। मेरे सीने से एक तवील सांस और खारिज हो गई। फोन का जिक्र पर वो वाकया मेरे जहन में ताजा हो गया था जब फाजलिया कॉलोनी वाली कोठी में फायरिंग की आवाज गूंज रही थी। मैंने 2 फायरिंग ब्रस्ट के दौरान में कोठी के किसी हिस्से से फोन की घंटी की आवाज वाज़ेह तौर पर सुनी थी। बादशाह की अफरा तफरी और हलचल ने मेरा ध्यान उस तरफ से हटा दिया था। अगर उस वक्त मुझे मालूम होता कि पाशा मुझसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा है तो मैं किसी तरह फोन अटेंड करने के बारे में सोच सकता था, लेकिन अफसोस कि इस बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। कमान से निकला हुआ तीर और बीता हुआ लम्हा कभी लौट कर वापस नहीं आता, इसलिए पछताने का कोई फायदा नहीं था। मैंने अल्लाह दीता से कहा कि खाने का वक्त हो चुका है, इस सिलसिले में तुमने कोई बंदोबस्त किया है? वो धीमी आवाज में बोला, पाशा साहब जिस अफरा तफरी के आलम में यहाँ से रुखसत हुए हैं, उस वाक़े ने मुझे बहुत ही दिल शिकस्ता कर दिया है। बाकायदा खाने का एहतमाम तो नहीं किया गया, लेकिन मैं 15-20 मिनट में तैयार कर लूंगा। सच्ची बात तो यह है कि खुद मेरा खाने पीने को जी नहीं जा रहा था। खाने वाला सवाल मैंने महज जरगुल की वजह से किया था। जिन हालात में हमारी मुलाकात हुई थी उससे लगता था पिछले कई घंटों से जिंदगी बचाने की सही ने उसे खाना खाने की भी मोहलत नहीं दी होगी। दिल बोझल और जहन परागंदा ही सही, मगर जिंदगी के तकाजे निभाना पड़ते हैं, जिनमें अव्वलीन तकाजा ये है कि जिंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए, चाहे वो खाना जहर मार ही क्यों ना किया जाए। मेरे इशारे पर अल्लाह दीता उठकर किचन की तरफ जाने लगा तो मैंने ताकीदी लहजे में कहा, किसी तकल्लुफ में पड़ने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा सीधा साधा खाना तैयार कर लो। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने इजाफा किया, और किचन में मसरूफ होने से पहले जरा सिक्योरिटी गार्ड की तरफ भी चक्कर लगा लो। वो नया बंदा है, शुरू ही से टाइट करके रखोगे तो बाद में परेशानी नहीं होगी। उसे अच्छी तरह समझा दो कि अपनी आंखें खुली और हवास बेदार रखे। अल्लाह दीता इस बात में सर हिलाते हुए रुखसत हो गया। अल्लाह दीता से होने वाली गुफ्तगू के दौरान मैं जरगुल बिल्कुल ही खामोश बैठी रही थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि हमें तन्हाई मुयस्सर आ गई है, उसकी जुबान खुल गई। उसने मुझसे मुखातिब होते हुए सवाल किया, वजी ये नकली वजदान या बहरूपिये का क्या चक्कर है? मैंने जवाब दिया, ये चक्कर अभी पूरी तरह मेरी समझ में भी नहीं आ सकता। मेरा ख्याल है ये मेरे दुश्मनों की कोई गहरी चाल है। लेकिन मैंने जुमला अधूरा छोड़कर जरगुल को देखा और कहा कि मुझे उम्मीद है मैं इस साजिश को बहुत जल्द बेनकाब कर दूंगा। वो तो इस कोठी से तुम्हारी डार्लिंग को भी ले गया है। जरगुल ने जवाब दिया, इस डार्लिंग के बारे में कुछ बताओ, ये किरदार भी मेरे जहन में अच्छा खासा उलझ रहा है। मैंने वजाहत करते हुए कहा कि डार्लिंग दरअसल मेरी बिल्ली का नाम है। वो बहुत ही क्यूट पालतू बिल्ली है,
मगर इस बहरूपिये की जान से बेआगी वो उसे वजदान ही समझी होगी। मैं इसी पहलू से बात कर रही हूँ वजी, वो संजीदगी से बोली। जानवर और खास तौर पर पालतू जानवर तो बहुत ही समझदार और मालिक शनास होते हैं। उनकी हिस्स निहायत ही तेज होती है। वो तो अपने आका के कदमों की चाप से उसकी मौजूदगी का अंदाजा लगा लेते हैं। उनकी हसासियत जिस्म की महसूस बू को भी अलग अलग शनाख्त कर लेती है। तुम्हारी डार्लिंग यकीनन तुम्हारे लम्स और जिस्म की महसूस महक से आशना होगी। तुम्हारा सवांग भरने वाला कोई बहरूपिया उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। इन लोगों के बयान के मुताबिक डार्लिंग बड़ी ही शराफत से उस नकली वजदान के साथ चलेगी। ये वाकई मुझे हजम नहीं हो रहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? जरगुल ने बहुत ही अहम सवाल उठाया था। वाकई डार्लिंग एक जानवर होने के नाते मुझे और मेरे लम्स को बहुत अच्छी तरह जानती और पहचानती थी। वो नकली और असली वजदान में बाहूबी तमीज करने की सलाहियत रखती थी। और फिर डार्लिंग कोई आम जानवर नहीं थी। अब तक उस बिल्ली के जितने भी रूप और कारनामे मेरे सामने आ चुके थे वो हैरान कुन और बाज नाकाबिले यकीन थे। उसे धोखा ये जान सा देना हमाशा के बस की बात नहीं थी। बहरूपिया अगर इस कोठी से डार्लिंग अपने साथ ले गया था तो यकीनन उसने कोई बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया होगा। अब रफ्ता रफ्ता उस नकली वजदान और उसकी दीगर कारगुजारियां भी मुझ पर खुल रही थीं। वो मेरे कामयाब डमी का भरपूर रोल अदा कर रहा था। जरगुल डार्लिंग के कारनामों से वाकिफ नहीं थी, इसलिए उसके जहन में डार्लिंग का तस्वर किसी आम बिल्ली जैसा होगा। मैं सरदस्त उसे डार्लिंग के बारे में किसी तफसील में ले जाने का कोई इरादा नहीं रखता था, इसलिए मुबहम अंदाज में कहा, तुमने बात तो बहुत पते की है। लगता है वो बहरूपिया कोई जादू वगैरह भी जानता है। गोया नकल बा मुताबिक असल बनाने की कोशिश की गई है। वो मानी है इस नजर से मुझे तकते हुए बोली, तुम भी कौन से कम घुन्नी हो? मैंने तुम्हें ऐसे ही पुरस्कार तो नहीं कह दिया था। मैंने बोजुम बदलते हुए उससे पूछा, तुम्हारे कंधे का दर्द अब कैसा है? कोई हास नहीं, वो घायल शाने को उचकाते हुए बोली। मैं तो इसे भूल ही गई थी। मैंने कहा कि खाने से फारिग होने के बाद तुम लिबास तब्दील कर देना, मैं तुम्हें ढंग का कोई जनाना लिबास निकलवा दूंगा। उसी वक्त तुम्हारे कंधे का मुआयना भी कर लूंगा। मेरा ख्याल है पाशा की कोठी में फर्स्ट एड का सामान मौजूद होगा। तुम्हारी माकूल सी ड्रेसिंग हो जाए तो आराम से सो जाना। पता नहीं कल की सुबह तुम्हारे लिए किन हंगामों का तोहफा लेकर आएगी। उसके चेहरे के तासुरात से जाहिर होता था वो अच्छी तरह समझ रही है कि मैंने गुफ्तगू का मौजू क्यों बदला है। वो दिल की बात को जुबान पर ना लाते हुए बोली, तुम ठीक कह रहे हो वजी, कल की सुबह का कोई भरोसा नहीं। आज की रात ही हैरियत से गुजर जाए तो बहुत गनीमत होगी। इंशाल्लाह सब हैरियत रहेगी, मैंने तसल्ली अमेज लहजे में कहा। अगरचे हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे, वो ख्याल अफरोज अंदाज में बोली। मुझे हदशा है कि वो बहरूपिया जरूर कोई नया गुल खिलाएगा। उसकी हरकत को मैं समझ नहीं पा रही। कौन सी हरकत? मैंने पूछा। यही डार्लिंग की अगवा वाली हरकत। उसने लफ्ज अगवा पर जोर देते हुए कहा। वो यहाँ इस कोठी के मुलाजमीन की आंखों में धूल झोंकी और सिर्फ एक पालतू बिल्ली पर कनात करके खामोशी से चला गया। अगर वो तुम्हारा दुश्मन है तो बड़ा ही अजीब दुश्मन है। अगर वो वाकई सिर्फ तुम्हारी बिल्ली ही हासिल करने यहाँ आया था तो फिर तो तुम्हारी बिल्ली निहायत ही गैर मामूली होगी। वो बड़ी ही महारत से हालात का तजिया कर रही थी। मैं उसके दलाइल को रद्द नहीं कर सकता था। ये बात मेरे जहन में भी आई थी कि वो मक्कार सिर्फ डार्लिंग पर ही इक्तफा करके क्यों चलता बना। फौरी तौर पर इसका जो जवाब जहन में आ रहा था वो यही था कि वो शख्स या उसके पीछे काम करने वाला दिमाग डार्लिंग की पुरस्कारियत वाला राज जरूर जानता होगा। कहीं ऐसा तो नहीं? अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल चमका। कहीं ऐसा तो नहीं कि डार्लिंग को किसी खास मकसद के तहत अगवा किया गया हो और उसको हासिल करने के लिए मेरी डमी से काम लिया गया था? ऐन मुमकिन था कि ये काम मेरी या डार्लिंग के किसी नए दुश्मन ने करवाया हो। ये सवाल सैकड़ों मुख्तलिफ नौइयत के सवालों को जन्म देता था, जिन जवाबात के बारे में मैं फिल वक्त कोई हतमी बात नहीं कर सकता था। बहरहाल मेरी जिंदगी में नकली वजदान वाला एक नया सिलसिला चल निकला था। मैं नहीं जानता था कि आगे चलकर ये ऊंट किस करवट बैठेगा। सूरत हाल अचानक ही गंभीर और उलझन ज़दा हो गई थी। इस दौरान में जरगुल टिकटिकी बांधे मुझे देखे चली जा रही थी। उसे थोड़ी देर पहले जो निकात उठाए थे मैंने उनके जवाब में अभी तक उसे कुछ नहीं कहा था। जरगुल की तरफ देखते हुए मैंने टालने वाले अंदाज में कहा, इन तमाम पहलू पर फुर्सत से गौर करूंगा। चलना में खामोश रहने के बाद उसने कहा कि इस कोठी में आने के बाद तुमने मुलाजमीन से बातचीत की है। इसे मैं अंदाजा लगा चुकी हूँ कि हमारा ताकुब करने वाली सुर्ख जीप में यही बहरूपिया मौजूद था, लेकिन वहां नहर के किनारे तुमने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। उस वक्त इस बारे में तुम्हें कुछ बताना मैंने जरूरी नहीं समझा था। बताया तो अब भी नहीं? मैंने खुद अंदाजा लगाया है, वो शिकायती लहजे में बोली। तुमने अपनी जहानत का इजहार किया है।
میں نے کہا۔ وہ پینترا بدلتے ہوئے بولی، یہاں سب دوست اور دشمن تمہیں وجدان کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اس سے میں الجھن محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے اس بات کی قریت نہیں کہ وجدان ہو یا بچی، میں اپنی آسانی کے لیے اگر تمہیں وجدان ہی سمجھوں تو تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ اپنے ذہن کو الجھانے سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم مجھے وجدان سمجھتی اور پکارتی رہو۔ ہمارے درمیان اسی نوعیت کی چھوٹی موٹی باتیں جاری تھی کہ اللہ دیتا نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگنے کی نوعیت سنا دی۔ ہم ڈرائنگ روم میں سے اٹھ کر اس جانب بڑھ گئے۔ کھانے کے بعد میں نے اللہ دیتا کے توسط سے نائلہ کا ایک دھلا ہوا لباس حاصل کر کے زرگل کو تھما دیا۔ اللہ دیتا کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ ایک طویل عرصے سے پادشاہ کی کوٹھی میں کام اور آرام کر رہا تھا، اسی وجہ سے اس کی حیثیت گھریلو ملازم کے ساتھ ساتھ ایک فیملی ممبر جیسی ہو گئی تھی۔ اللہ رکھی اور اس کی بیٹی آمنہ کا کام ختم جب ہوتا تھا تو وہ اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ زرگل لباس تبدیل کر کے واش روم سے نکلی تو میں نے اس کے زخمی بازو کا معائنہ کیا۔ میرے پوچھنے پر اللہ دیتا فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا۔ کندھے کا زخم تشویشناک نہیں تھا۔ میں نے متاثرہ حصے کو ایک اینٹی سیپٹک لوشن سے صاف کیا اور وانڈ ہیلنگ کریم لگا کر پٹی باندھ دی۔ کورا دا وانڈ ہیلنگ کریم کسی غیر ملکی کمپنی کی بنی ہوئی تھی جو زخموں کی مزاج پرسی کے لیے بڑی ہی مستند سمجھی جاتی تھی۔ اس ضروری کام سے نمٹنے کے بعد میں زرگل کو اپنے ساتھ بالائی منزل والے بیڈ روم میں لے گیا اور کہا کہ آج کل میں کوٹھی کے اس کمرے میں ٹھہرا ہوں، تم آرام سے یہاں ایک محفوظ اور گہری نیند لے سکتی ہو، تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ میں نچلی منزل کے کسی کمرے میں رات گزار لوں گا، تم چاہو تو دروازے کو اندر سے بند بھی کر سکتی ہو۔ وہ کمرے کے در و دیوار اور کھڑکیوں پر ایک تارانہ نگاہ دوڑاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو تو میں یقین کر لیتی ہوں، لیکن اب تک میری تم ہی نے حفاظت کی ہے، اس لیے میں تمہاری باتوں کو غلط نہیں سمجھ سکتی۔ ویسے تو اس بیڈ روم میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، میں نے زرگل کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اگر پھر بھی تمہیں کچھ چاہیے تو بلا تکلف بتا دینا۔ بتا دوں گی، اس نے مختصر گوئی پر ہی اکتفا کیا۔ اس وقت زرگل کے بدن پر نائلہ کا گلابی لباس تھا جو بڑھ چڑھ کر اس پر پھب رہا تھا۔ زرگل کی رنگت میں پہلے ہی دودھ اور گلاب کی آمیزش تھی، اس گلابی پہناوے نے اس کے حسن بے داغ میں چاندنی بھر دی تھی۔ وہ اس وقت بلا شبہ گلاب بدن نظر آ رہی تھی۔ میرے پاس ہوشہ چینی کی گنجائش تھی اور نہ ہی بھورا کاری کا وقت تھا، لہٰذا اس اجنبی اور مصیبت زدہ لڑکی پر ایک بھرپور نظر ڈال کر میں بیڈ روم سے نکل آیا۔ زیری منزل تک پہنچنے کے بعد زینہ طے کرتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ زرگل کو یہاں لا کر میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، اگر یہ غلطی تھی بھی تو بہرحال اب ہو چکی تھی۔ پھر میرا خیال اپنے سامان کی طرف چلا گیا۔ میں چونکہ بالائی منزل کے اسی بیڈ روم میں ٹھہرا ہوا تھا، اس لیے میرا سفری بیگ اسی کمرے کی ایک الماری میں رکھا تھا اور وہ الماری لاک تھی۔ اول تو زرگل اس بیگ تک پہنچ نہیں سکتی تھی اور بالفرض پہنچ بھی جاتی تو وہاں اس کے مطلب کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں زیری منزل پر واقع ڈرائنگ روم میں بیٹھا فرید پاشا کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک بڑی مصیبت سے نبرد آزمائی کے لیے گیا تھا، اسے کسی بھی وقت میری مدد کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ اگر ان نازک ترین حالات میں اس کے کام نہ آتا تو ایسی دوستی اچار مربع ڈالنے کے سوا کس کام کی تھی؟ اللہ دیتا بھی میرے پاس آ بیٹھا۔ کھانے کے بعد چائے کا ایک دور چل چکا تھا، پھر بھی وہ میرے لیے عمدہ قسم کی کافی بنا لایا۔ کافی اور چائے وغیرہ مجھ پر معکوس اثرات مرتب کرتی ہیں۔ عام طور پر ان مشروبات سے نیند اڑ جاتی ہے اور بھوک مر جاتی ہے، لیکن چائے کافی کے استعمال کے بعد میں واضح طور پر بھوک محسوس کرنے لگتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔